Everyone, today we're going to start the another session of the Hindu Marriage Act. So in the last class we have completed the portion of the divorce, and we have also discussed the alternative relief of the divorce under section 13A of the Hindu Marriage Act. Okay, I have told you in details that what are the alternative reliefs of the divorce and what are the grounds or what are the other reliefs of the divorce that can be granted. Okay, so we have already discussed in details all about these things. So coming to the next point, we are talking about section 13B today. Section 13B speaks about the divorce by the mutual consent, and I have already explained you in the last class. When it is the divorce by the mutual consent, that means the both the parties who are taking divorce, they are mutually interested to get separated from each other. They're mutually interested that they don't want to stay with each other, and they are mutually saying that no, we want to end our relationship over here. हमें इससे आगे नहीं जाना है, हम यहाँ पे अपना रिश्ता खत्म करने को रेडी हैं. So under the mutual consent of the divorce, we have discussed that कि when both the parties are living separately for a period 1 year or more, they have not been able to live together and they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. Okay, so this thing we have already discussed. When the parties have already decided or already realized that the marriage should not be continue anymore, the marriage should be dissolved, then this is the discussion of the parties that they should decide that yes, what are the ground, what is the particular specific ground, they need to show the court that this is the reason we don't want to stay with each other. And if the parties have already stayed separate from each other more than 1 year after the commencement of the marriage, मतलब मान लो the marriage has happened 2 years back, शादी के बाद 1 साल उन दोनों एक साथ रह चुके हैं, but after the 1 year of the marriage, it is the situation that पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, and it's about more than 1 year that एक दूसरे से वो दोनों अलग ही रह रहे हैं. They are not living together with each other. Okay, so when it is about the mutual consent, that it is the most needed that the parties should not be agreed to stay with each other at any cost. Any of the parties, either it might be the husband, it might be the wife, कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों के तरफ से डिवोर्स के लिए कंसेंट रहना बहुत जरूरी होता है. पहला चीज. दूसरा चीज, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, when we are talking about the separation of more than 1 year, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर चुके थे, that when the parties are separately staying from each other that more than 1 year, in that case what it feels to the court that they have already set their mind to stay apart. Because अगर 1 साल से एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, then there is no more point to grant the judicial separation to the parties. Judicial separation जो आपको इशू किया जाता है, in what particular case the judicial separation has been issued? The judicial separation has been issued in the case where it is the situation like the parties are, one of the party wants the divorce and other party doesn't, or it is the just a divorce petition by a particular spouse, either by the husband or either by the wife, or even if it's by the mutual consent, the parties are already staying together, but due to certain disputes they are asking to stay separate from each other in that particular case. So when it is about the judicial separation, then we know that in the case of the judicial separation, court gives the 6 month of the time period to the parties. 6 महीने का वक्त देता है कोर्ट, और बोलता है कि आप 6 महीने एक दूसरे के साथ स्पेंड करो. अगर 6 महीने रहने के बाद भी आपको ये महसूस होता है कि आप एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हो, then we are going to grant the divorce. This was about the judicial separation we have discussed. Okay, so when we are talking about the divorce by the mutual consent, then we know that when it is the divorce by the mutual consent, when it is the consent of the both of the parties to grant the divorce to each other,
and they are already staying separately from each other, then in that case the court will easily grant them divorce without any lingering of the period. अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर फाइलिंग कि हमें डिवोर्स चाहिए, देन कोर्ट विल डिसाइड कि हाँ ठीक है, उनको डिवोर्स इशू करवा देना चाहिए. ओके, बट व्हेन दिस इज द सिचुएशन दैट द कोर्ट डिसाइड्स कि नहीं, यहाँ पे पार्टी को 6 month और देना चाहिए, दे शुड टॉक टू ईच अदर, दे शुड नो ईच अदर, दे शुड डिसाइड दे वांट टू स्टे विथ ईच अदर और नॉट, then in that particular case this is the discretion of the parties that they will decide after 6 months that they want to stay or they don't want to stay. बट आफ्टर 6 month अगर ऐसा सिचुएशन होता है, इवन इफ इट इज द डिवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट, 6 महीने के बाद दोनों पार्टी बोलते हैं कि नहीं, अभी भी हम साथ रहने को तैयार नहीं है, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द कोर्ट विल ग्रांट देम द डिक्री ऑफ द डिवोर्स. ओके, दिस इज द थिंग. नेक्स्ट, no petition for divorce to be presented within 1 year of the marriage. Okay, so what is the situation over here? We have understood that in this, under section 14 of the Hindu Marriage Act, we have understood that no petition for divorce to be presented within 1 year of the marriage. That means शादी का 1 साल के अंदर कोई भी डिवोर्स का पिटिशन फाइल नहीं होनी चाहिए. That is the most important thing. Okay, सो यू मे आस्क मी दैट यू आर टेलिंग मैम कि आप बोल रही कि शादी का 1 साल के अंदर कोई भी डिवोर्स का पिटिशन नहीं होनी चाहिए, बट अगर शादी के 1 साल के अंदर वाइफ के मतलब टू द वाइफ देयर इज एनी काइंड ऑफ द फिजिकल वायलेंस, फिजिकल क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी, एनी काइंड ऑफ थिंग इज देयर, देन ये उस केस पे क्या होगा? उस केस पे ना कोर्ट यूजुअली ग्रांट्स द जुडिशियल सेपरेशन एंड आफ्टर 1 year कोर्ट इशूज द डिवोर्स. ओके, बट यूजुअली ऐसा होता है कि कोर्ट गिव्स द टाइम पीरियड ऑफ मिनिमम 6 month टू द पार्टीज टू नो ईच अदर, टू ट्राई टू मेक द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर. उसके बाद अगर नहीं होता है, देन कोर्ट ग्रांट्स द इशूज द डिवोर्स. ओके, सो वी नो दैट नो पिटिशन फॉर द डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन द 1 year ऑफ द मैरिज. शादी का 1 साल के अंदर there should be no petition in the court of law. शादी का 1 साल के अंदर कोर्ट में किसी भी तरह का पिटिशन नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवर. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव अंडरस्टूड अंडर सेक्शन 15 दैट डिवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि जब डिवोर्स हो जाता है, सारा चीजें सॉर्ट आउट हो जाता है, देन इट कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द मैरिज. सो यू मे आस्क मी दैट डिवोर्स पर्सन व्हेन टू मैरी अगेन, मतलब अगर मेरा एक इंसान के साथ डिवोर्स हो गया तो मैं दूसरा शादी कब कर सकती हूँ? जब मेरे को इस चीज का क्लैरिटी मिल जाता है कि देयर इज नो फर्दर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिवोर्स. अगर ऐसा होता है कि डिवोर्स का जो डिसीजन होता है उसके अगेंस्ट किसी भी दूसरा अपील नहीं आएगा, और द बोथ ऑफ द पार्टीज आर satisfied with the decision of the court, then in that case the parties may remarry again. जैसे कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हमको पता है कि डिवोर्स का जितना सारा पिटिशंस होता है वो यूजुअली होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आपका फैमिली कोर्ट का जो डिपार्टमेंट होता है, वहां पे ही आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के अंदर the cases of the divorce has been filed in the family court. We know this. Okay, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आपका जो डिसीजन है इट कम्स अगेंस्ट यू, तो यू कैन गो टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट, डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. और हायर कोर्ट का डिसीजन पे भी आप अगर सेटिस्फाई नहीं होते हो, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. बट उसी का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है. जैसे कि आपको मतलब 1 साल के अंदर करना है, या नहीं मतलब सॉरी, जैसे कि आपको 30 days या 90 days के अंदर, जिस दिन के अंदर आपको जो डिसीजन आता है उसके अंदर आपको इमीडिएटली जाके फाइल करना पड़ता है इन द हायर कोर्ट फॉर द अगेंस्ट द डिक्री ऑफ द डिवोर्स और अगेंस्ट द डिक्री ऑफ द लोअर कोर्ट. ओके, लोअर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है उसी के अगेंस्ट आपको जाके अपील करना पड़ता है. बट द पॉइंट इज कि अगर आप अपना जो
अपील है ना, वो इमीडिएटली ना करके देर पे कर रहे हो, बियॉन्ड द टाइम कर रहे हो। मान लो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज अप्रूव्ड यू द डिक्री ऑफ द डिवोर्स और मेंटेनेंस कुछ भी टुडे, आज दे दिया। फिर आपने क्या किया, 1 साल के बाद जाके इन द हायर कोर्ट यू आर सेइंग कि मेरे साथ गलत हो गया, अब मेरे को इस डिसीजन के अगेंस्ट पिटिशन फाइल करनी है। देन इज द कोर्ट रेडी टू हियर यू? आंसर इज नो, बिकॉज आप 1 साल से थे कहाँ। बाकी जो आपका अनदर अपोनेंट पार्टी है उसको भी तो दूसरी शादी करनी है, उसको भी तो अपना लाइफ शुरू करनी है। वो तो आपके चक्कर पे बैठे नहीं रहेगी, या बैठा नहीं रहेगा। वो अपना काम करता रहेगा, वो दूसरा शादी करेगा, वो अपना फैमिली बनाएगा। तो दिस इज द सिचुएशन। अगर टाइम आउट हो गया है, मतलब अपील का जितना टाइम पीरियड है, अगर वो आउट हो चुका है, वो टाइम जा चुका है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू विद द पिटिशन ऑफ द अपील, है ना। वहां पे अपील नहीं किया जा सकता। और जहां पे ये कंफर्म्ड है कि अगर अपील किया जाएगा तो केस डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि केस अपील का टाइम पीरियड जा चुका है, या फिर अपील किया हुआ है बट हाई कोर्ट ने वो अपील को डिसमिस कर दिया ऑन द ग्राउंड कि लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही था, आप इसी के अगेंस्ट अननेसेसरी कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो। तो इन दैट केस ऑल्सो द पार्टीज कैन मैरी अगेन। उनको इस बात का पता चल चुका है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो डिसीजन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये फाइनल है, ये जस्टिफाइड है। तो इसके अगेंस्ट अगर हम हायर कोर्ट को जाते हैं, देर इज नो पॉइंट टू कंटिन्यू विद दिस बिकॉज दिस इज इनवैलिड इन नेचर, है ना। दैट इज वाई इन दिस केस द डिवोर्स पर्सन मे मैरी अगेन। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, legitimacy of the children of void and voidable marriages. One second, guys. So, yeah, we're talking about the section 15 that speaks about the divorced person when may marry again. And next comes to the section 16. It speaks about the legitimacy of the children in the void and voidable marriages. Okay. So when I'm talking about the legitimacy of the children, then we need to know that we are talking about the legality of the child. That when a child is called as a valid legal child, and that makes the legitimacy of the children, makes entitled to the child to be the next authority of their parent property. Just like, for example, if I am having my authority of my parents, if I am the legitimate child of my mom and dad, then I have my all rights on their family property, on their financial thing and all these things. Okay. So this is the right of the legitimate child according to the Hindu Marriage Act, we know. So let's understand that what is all about the legitimacy of the children in void and voidable marriages and in the valid marriage. Okay. We know that when it is itself a valid marriage, that means when a marriage is completely valid, and when it is a proper and valid marriage, then in that case what happens, the marriage is valid means the parties are marrying each other with a valid consent. The parties are not sapindas of the each other, and any of the spouse who is getting married is not having any particular partner before the marriage or at the time of the marriage. And most importantly, both of the partners are legally authorized to be the husband and wife of each other. Just like we have understood the terms and conditions in the Hindu Marriage Act that the parties must not be below 18 years, and the age of the bride that should not be below 18, the age of the groom that must not be below 21, and the parties, any of the party must not be mentally unstable to give the consent for the marriage, or the parties must not have any kind of the other marriage before this particular marriage. So these are the criteria we have already discussed, that what are the situations in which the marriage is considered as a particular valid marriage. Okay. And when we're talking about the legitimacy of the children coming out of this valid marriage, this means
This makes the children authorized to take the ancestral inheritance of their family and of their parents. So when a marriage is a completely valid marriage, it is always not mandatory कि all the marriages should have been registered or registered in the court of law. Okay, so even if the marriage is not registered in the pen and paper, if it has been done according to the proper Hindu rituals, just like the सप्तपदी, पानी ग्रहण and the सात फेर लेना, ये सारी चीजें अगर हो चुका है शादी पे, कोई रिश्तेदार आए हैं शादी पे, शादी का कोई प्रॉपर सबूत है, इवन इफ आप मंदिर पे ही शादी क्यों ना कर लो, अगर प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो फॉलो हुआ है, देन द पर्सन्स विल बी कॉल्ड एज द हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ ईच अदर, उनको पति पत्नी माना जाएगा। और उस शादी से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको भी लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, एंड द चाइल्ड प्रोड्यूस फ्रॉम दैट वैलिड मैरिज विल गेट द नेम ऑफ मदर एंड फादर। इवन इफ इन द केस ऑफ द डिवोर्स, अगर पति पत्नी के बीच में डिवोर्स हो जाता है, दे विल नॉट कॉल एज द हस्बैंड एंड वाइफ, बट दे विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज द फादर ऑफ मदर ऑफ दैट स्पेसिफिक चाइल्ड। उस रिश्ते को आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको आपका पति से डिवोर्स हो गया, आपका पत्नी से डिवोर्स हो गया, आप और किसी से शादी कर भी लिए, तो यू विल हैव योर अनदर पार्टनर। आप अपने दूसरे पार्टनर को अपने पति या पत्नी बोलेंगे, बट आपका पहला पार्टनर से जो बच्चा हुआ है ना, आपका पति उसका बाप नहीं बन सकता। द फादर विल बी ऑलवेज ए फादर। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ हमारा ये बोला जाता है कि माँ बाप का बच्चे के ऊपर जो, बच्चा का माँ बाप के ऊपर जो राइट होता है ना, दैट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट इवन इफ द मैरिज इज dissolved, even if the husband and wife has been separated from each other. This is not the sufficient ground to prove that the child is not considered as their child anymore. ऐसा नहीं है कि अगर पति पत्नी का डिवोर्स हो गया तो बच्चा हमारा बच्चा कहलाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। द कस्टडी विल बी गिवन टू आइदर टू द फादर और द मदर, seeing according to the financial situation and according to the circumstances itself. Okay, माँ बाप का फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस क्या है, सिचुएशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो ये सारी जो चीजें है ना उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करने के बाद ही द कोर्ट विल टेक ए डिसीजन कि हाँ यहाँ पे क्या करना चाहिए। ओके, द कस्टडी शुड बी गिवन टू whom. Got it? So when we are talking about the legitimacy of the children, okay, we are talking that कि हाँ जब एक शादी वैलिड मैरिज माना जाता है, देन द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज वैलिड। ये चीज क्लियर हुआ। क्लॉज 1 क्या बोलता है? नॉटविथस्टैंडिंग दैट मैरिज इज नॉल एट वॉइड अंडर सेक्शन 11, any child of such marriage who would have been legitimate if that marriage had been valid shall be legitimate whether such child born before or after concealment of the marriage act, or whether or not a decree of nullity is granted in respect of the marriage under this act, whether or not the marriage is held to be void, otherwise the petition under this act. और कुछ कुछ चीज पे क्या होता है ना, मैरिज को ना नॉल एंड भॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ए भॉइड मैरिज, अब मैंने बात किया था ना सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 पे अबाउट द भॉइड मैरिज एंड अबाउट द भॉइडेबल मैरिज। भॉइड मैरिज का जो जो कंडीशन हमने डिस्कस किया था, क्या क्या कंडीशन डिस्कस किया था कि शादी के टाइम आपका पार्टनर को दूसरा कोई रिश्ता हो एंड दूसरा रिश्ता से उनका कोई दूसरा पार्टनर हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम मैरिड and I am having my husband or wife, at the time of the already I am having another partner at the time of the marriage. Okay, so my second marriage will not be considered as a valid marriage because पहला शादी को शादी माना जाएगा, दूसरा शादी को शादी नहीं माना जाएगा। अगर मेरा पति या पत्नी का होते हुए भी मैं दूसरा शादी कर रही हूँ, that is not going to be considered as a valid marriage itself. ये बात क्लियर हुआ आपको, समझ में आ गया? दूसरा चीज क्या बोलता है, when the marriage is void as per the nature,
according to the step in the relationship of the parties or according to the blood relation of the parties. For example, some person is my brother, some person is my sister, and I am marrying to my sister, I am marrying to my brother, I am marrying to my father-in-law, I am marrying to my mother-in-law, और आई एम मैरिंग टू माई मदर्स सिस्टर सन, मेरी मौसी का बेटा, मेरा मतलब मौसी का बेटी, उनसे मैं शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो दीज आर द ना फैमिली रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस। हमारा हिंदू रिचुअल्स में उसी को भाई बहन का पवित्र रिश्ता का दर्जा दिया गया है, एंड वी ऑलवेज फॉलो देम। क्या वो हमारे भाई बहन है। अगर हम अपने ही भाई बहन से शादी कर लेते हैं, देन दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए वैलिड मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द वॉइड मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। उस शादी को वॉइड माना जाएगा, अनऑथेंटिकेट माना जाएगा। बट मान लो उस रिश्ते से वी हैव ए चाइल्ड। मैंने अपने एक एग्जाम्पल देती हूँ। देयर इज ए पर्सन ए ने क्या किया, अपने ऑन्ट का जो बेटा है उससे शादी कर ली। ओके, ऑन्ट का बेटा मतलब ए बी सी, 3 पर्सन्स। ए इज द पर्सन जो शादी कर रही है, द गर्ल। बी इज द पर्सन, द फादर ऑफ ए। सी इज द पर्सन, द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ ए। ओके, बी का बहन है सी, ए इज द डॉटर ऑफ सी। ओके, तो सी का जो बेटा है डी, ए ने क्या किया, डी से शादी कर लिया। हियर डी इज द सन ऑफ द सी एंड सी इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज द फादर ऑफ ए। समझ में आ गया रिलेशन। तो मोर ओवर देखा जाए तो यहाँ पे इवन इफ इट इज नॉट द ब्लड रिलेशन बट इट इज कनेक्टेड टू द ब्लड रिलेशन। यहाँ पे ए एंड डी भाई बहन बन गए, but if from that relationship they are having a child, they got married and they are having a child. So जब तक ये बात पता चला कि हाँ ये शादी हो चुकी है एंड दिस मैरिज इज ए वॉइड मैरिज, तब तक ए जो है कंसीव कर चुकी है एंड सी इज ऑलरेडी हैविंग ए चाइल्ड इन हर womb. So according to the law, according to the rules and regulations, हम किसी को मार नहीं सकते, यहाँ पे abortion allowed नहीं है, because this is a life which is grooming up. आप किसी का जान इससे नहीं ले सकते। तो बच्चा पैदा हुआ है ना, तो अभी ये जो बच्चा पैदा होता है वो किसका बच्चा है, ए और डी का बच्चा है। ए और डी अगर ब्लड रिलेशन पे देखा जाए तो क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। उनका जो रिश्ता है, शादी का रिश्ता है, क्या उसी को वैलिड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए वैलिड मैरिज। बट अगर उनका एक बच्चा उस रिश्ते से होता है, क्या उन दोनों को उस बच्चे का माँ बाप माना जाएगा, हाँ माना जाएगा। इवन इफ द चाइल्ड हैज द ऑल लीगल ऑथोरिटीज ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फादर, बी का मतलब उसका जो बाप है, जो कि ए का भाई है, उसका प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा हक उस बच्चे का रहेगा, बिकॉज डी इज द फादर ऑफ दैट चाइल्ड। इवन इफ द मैरिज इज कंसिडर्ड एज ए वॉइड मैरिज, स्टिल इट इज द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड विल बी एक्सेप्टेड। चाइल्ड का लेजिटिमेसी को हम रद्द नहीं कर सकते। दूसरा चीज मैंने बताती हूँ, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, व्हेन इट इज द वॉइड मैरिज ड्यू टू ऑन द ग्राउंड ऑफ द मैरिज ऑफ द पार्टीज बिफोर अहेड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो देयर इज द अनदर पार्टनर whom I have already married before. शादी से पहले मेरा ऑलरेडी एक शादी हो रखी है, एंड शादी के बाद आई एम रीमैरिंग अगेन। ओके, बट एट द टाइम ऑफ रीमैरिज मैंने अपने पार्टनर को ये बात बताया नहीं था कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं करके। मैंने शादी कर ली, उस शादी से मेरा सेकेंड मैरिज से मेरा एक दूसरा बच्चा भी हो गया। देयर इज अनदर किड फ्रॉम माय सेकेंड मैरिज। ओके, जब शादी से मेरा कोई दूसरा बच्चा आ जाता है और बच्चा आने के बाद ही मेरे को पता चला कि अरे दिस पर्सन वाज ऑलरेडी मैरिड, तब तक मेरा एक बच्चा हो चुका है, तो मैं क्या करूंगी, मैं तो उस इंसान का लीगल वाइफ नहीं बोलवाऊंगी,
क्योंकि वो जो इंसान है वो अपने पहली बीवी को जो ना डिवोर्स देने को तैयार नहीं है, दैट पर्सन डजंट वांट टू डाइवोर्स हिज फर्स्ट वाइफ। और जब तक वो अपनी फर्स्ट वाइफ को डाइवोर्स नहीं करते तब तक मेरे को वैलिडली लीगल वाइफ नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। दैट इज वाई ये जो शादी हुई है ना, दिस मैरिज इज कम्प्लीटली वॉइड मैरिज। ये शादी का कोई मतलब ही नहीं है, ये शादी का कोई सबूत नहीं है। दिस मैरिज इज कम्प्लीटली एन इनवैलिड एंड अनऑथराइज्ड मैरिज, है ना। Even if this marriage is itself an unauthorized marriage, but the child produced from this marriage will be called as a legitimate child. Even if यहाँ पे वो दूसरा इंसान जिसको मैंने शादी की थी वो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है, और अभी उसी का दूसरा बच्चा मेरे पास है ना, and I got to know about his marriage afterwards, but the person will still be considered as the father of my child. एंड उसी का जो प्रॉपर्टी है ना, अगर जो प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड करने का बात आएगा ना, द प्रॉपर विल बी इक्विवेलेंटली डिवाइडेड टू हिज ओन सन, जो इसका पहली बीबी का है एंड जो मेरा बेटा है, उन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी का डिवाइड होगा। एंड माय सन इज गोइंग टू गेट द ऑल हिज लीगल राइट्स ऑन दिस, बिकॉज यहाँ पे भले ही शादी को वॉइड माना जाएगा लेकिन बच्चा को वैलिड माना जाएगा, बच्चा को लेजिटिमेट माना जाएगा, बिकॉज दिस इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ ए चाइल्ड। एंड हम ऐसे ही इलेजिटिमेट करके किसी बच्चे का जिंदगी खराब नहीं कर सकते। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। समझ में आ गया? ये हो गया आपका वॉइड मैरिज का बात। सेकेंड आते हैं आपका टॉपिक वॉइडेबल मैरिज पे। अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 2 पे आपका ये वॉइडेबल एंड सेकेंडली इट स्पीक्स अबाउट द voidable marriage. Okay, so when it is about the voidable marriage, we know that ki what is the ground behind a voidable marriage. Okay, जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे कि लाइक the age of the parties is below the 18 years, below the 21 years, उनका any of the ground of the mental disorder, और there is the no consent of the parties, है ना, बहुत सारे चीजें हैं to declare the marriage as part। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एक बच्ची का शादी हो गई है, मान लो द चाइल्ड इज बिलो 18 years of the old, 16 साल की बच्ची है, शादी हो गई, उसका एक बच्चा हो गया, है ना। तो जब उसको 17-18 साल हो गया, उसको समझ में आ गया कि यार मेरे को ये शादी करनी नहीं चाहिए थी, तो उसका 18 साल होने से पहले उसने जाके कोर्ट को बोला कि मैं ये शादी कंटिन्यू करना नहीं चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू एंड दिस मैरिज एंड आई वॉन्ट टू डिक्लेयर दिस मैरिज एट द वॉइडेबल हिंदू मैरिज, क्योंकि मेरा उम्र से पहले ही शादी करवा दी गई है एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दिस मैरिज। ओके, सो यहाँ पे कोर्ट ने देखा कि हाँ देयर इज द वैलिड ग्राउंड, तो यहाँ पे इस शादी को हम वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना। सो व्हेन देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स ऑन दिस, जहाँ पे ये चीज सही लगता है कि हाँ व्हेन देयर इज द वॉइडेबिलिटी ऑफ द मैरिज, व्हेन ये चीज लगता है कि यहाँ पे शादी टिक नहीं सकता, दिस मैरिज शुड बी डिक्लेयर्ड एज द वॉइडेबल, बट द चाइल्ड प्रोड्यूस्ड ऑन दैट voidable marriage will be considered as the legitimate child itself। ये चीज ध्यान रखनी होगी। इवन इफ शादी को voidable माना जाएगा, इवन इफ शादी को एक वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा, but the child produced on that from that marriage will have the same legal authority, will have the same legal capability, and the child will be considered as the legitimate child itself, as if he is the as if he has been produced from a valid marriage, and the parties to the voidable marriage will be considered as the father and mother of that specific child itself। Clear? So ये हो गया आपका सेक्शन 16। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक ऑफ द बाइगैमी। बाइगैमी क्या होता है? जब आप एक से ज्यादा शादी करते हो देन उसको हम बोलते हैं बाइगैमी। जैसे कि मेरा ऑलरेडी एक वाइफ है, आई एम हैविंग ए वाइफ एट होम, बट मैं उसके बाद क्या कर रही हूँ, दूसरी शादी कर रही हूँ,
है ना। ये दो तरीके से हो सकता है। पहला ऐसा हो सकता है कि आपका एक बीबी ऑलरेडी घर पे है, आप एक तो शादी कर चुके हैं, फिर आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं, so then that is called the बाइगैमी आफ्टर द मैरिज। बट आप अगर चाहो तो एक साथ भी बाइगैमी कर सकते हो। कैसे? आप एक साथ अगर दोनों शादी करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइगैमी ही बोलेंगे ना। सो दिस इज द बाइगैमी इज बेसिकली ऑफ द टू टाइप्स। either you are marrying at a time two persons or you are marrying one after another, पहले एक शादी करते हो फिर एक दूसरे शादी करते हो। तो ये हो गया आपका बाइगैमी का sin। So under section 17, when we are asking about the punishment of the bigamy, then we know that after the commencement of this Hindu Marriage Act, the bigamy is totally prohibited in India। ये बात हमको पता है कि इंडिया पे बाइगैमी अलाउड नहीं है। एंड अंडर द सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ द आईपीसी, जो कि अभी रिप्लेस हुआ है सेक्शन 84 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 ऑफ द बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, है ना, उसी में ये बाइगैमी का एक्सप्लेनेशन किया गया है। उसी में ये चीज बोला गया है कि अगर किसी भी पार्टी बाइगैमी करता है, किसी भी पार्टी दोनों शादी करते हैं, ओके, देन उसका जो पनिशमेंट है ना, दैट विल बी पनिश्ड मोर देन 7 years ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। अगर आप एक साथ दोनों शादी कर रहे हो तो सतर्क हो जाइए, आपको 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट मिल सकता है, 7 साल से ज्यादा जेल की सजा आपको हो सकता है। ये हो गया आपका। दूसरा, पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस ऑफ द हिंदू मैरिज। सेक्शन 5 में आपका जो देयर आर ए लॉट ऑफ terms and conditions for the Hindu marriage has been explained under section 5। तो वहां पे आपका जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, उसको अगर आप कंट्रावेंट करते हो, अगर आप उसी को बायस करते हो, देन देयर आर सर्टेन पनिशमेंट्स which will be awarded to you। ओके, सो व्हाट आर दोस पनिशमेंट? पहला पनिशमेंट, अगर आप क्लॉज 3 के अगेंस्ट जा रहे हो, देन आपको 2 years और विथ 2 years का जेल का पनिशमेंट एंड विद द फाइन विच मे एक्सटेंड टू द 1,00,000 रुपीज। एंड सेकेंड केस पे अगर आप क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट को डाइवर्ट कर रहे हो, सेक्शन 5 का, देन आपको जो जेल का पनिशमेंट है दैट माइट एक्सटेंड टू 1 month एंड द फाइन अमाउंट टू 1,000 ऑफ द रुपीज फॉर द बोथ। तो ये दोनों पनिशमेंट आपको हो सकता है। सो व्हाट दिस एग्जैक्टली सेक्शन 18 speaks about, that we will be discussing in the next class. We'll be discussing about the petition, that how a wife can file a petition in the court of law. What is the procedure of the filing a divorce petition? What are the terms and conditions of this? What are the rules and regulations of this? These things we are going to discuss in details in the next class. Okay. So this is all for guys today. We are wrapping up the class over here. Thank you.